Good morning, guys. So today we have with us Jwala sir. Jwala sir has cleared Bihar PSC, had a great rank, but for his love of teaching, he has never joined the services because before clearing, he was teaching in all the great coaching such as Raoul IAS and Academy, and he loved his students, loved teaching. Teaching is a passion for him, and therefore he decided not to join Bihar PCS. Again, he is from IIT Roorkee. After completing BTech, he has worked with Steel Authority of India and he has cleared every prelims that he has given in UPSC. Went on to give 3 interviews in UPSC and missed every time by 2 marks, 3 marks. It's very hard luck, you know how much luck matters in this exam. But today he is with us to tell us how he managed to clear prelims every time because now prelims is hardly 80 days away and every one of you is very confused about what to read, which NCERT should you follow, which test series should you give. And his experience of 10 years of preparation, clearing Bihar PCS, giving it so many interviews, very helpful for us. So I will ask your questions to him and let's see. So, Jwala sir, what would you suggest? How to balance between static and current affairs? How you did it? Because if you see today, every coaching is making videos on anything is happening in the world, they are making a video out of it. Elon Musk is doing something and they're making a video out of it. I know, what is this? So, how can a student go through it? Because he is reading Hindu, Express, then watching all these videos and seeing all these magazines. I don't think he has any time left for the basic concepts. And then he is not able to clear the prelims cutoff of 75 marks or 80 marks. So, what do you say? Yes. So, in the era of too much information, there is always this problem of understanding what is really important. So, we have to understand that for UPSC, the most important aspect is the basics. If you are good with your basics, then only current affairs will be appreciative or you will be able to appreciate current better. So, you have to be very good at your basics. Yes, current affairs is very important. That is why almost all institutes are focusing on it. But as an aspirant, you have to understand and realize this, that you first need to prioritize basics. So you have to be good with your basic books such as your NCERTs. Nowadays we are seeing that most of the aspirants, because they get lots of notes from the markets itself, they miss out on reading basic books. So they shouldn't be doing that. They should develop the habit of reading the books and then also doing current affairs. So there should be a balance. One of my professors used to say that Indians love freebies. So whatever they can get for free, they will have it. So it has become a hazard now because every coaching is giving all these notes, those yellow books, just free in the market at the cost of photocopy only. And every student is going out there and getting so many books. But they're not reading the thing that they should be reading. One of my friends who is a district collector, he says that if you want to become a district collector, do not become a notes collector. That's correct सर, क्या बात बोली है उन्होंने, एकदम पते की बात है. तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है आपको, डीएम ही बनना है. और डीएम बनने के लिए आपको एनसीईआरटी कलेक्ट करनी है, नोट्स कलेक्ट नहीं करना है. जो सर एक चीज़ और है जो सारे बच्चे बहुत परेशान है, ये है कि इतनी सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में है, कुछ बच्चे तो ऐसे दिन में 4 टेस्ट लिख रहे हैं और उसमें उनके नंबर आ जाते हैं 100-125, क्योंकि कोचिंग टेस्ट वैसे ही बनाती है, लास्ट ईयर जो पैटर्न है उसके हिसाब से टेस्ट बना दिया, उसी हिसाब से बच्चे ने पढ़ लिया, वही माइंडसेट लेके. लेकिन अगले साल क्या होता है कि यूपीएससी अपना पैटर्न बदल देती है और फिर अगले साल फिर उसके वही 60-70 नंबर आते हैं जब वो एग्जाम देने जाता है. तो इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि वो फेक कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक आ गया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है. तो टेस्ट सीरीज आपको करनी है, हर एस्पिरेंट को करनी है, पर आपको ये फाइन बैलेंस भी पता होना चाहिए कि ये टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस कितनी है. तो हर रोज़ टेस्ट करना है बट 4 टेस्ट भी नहीं करना है. तो क्वांटिटी आप बहुत कर रहे हो, उससे आपको सेल्फ ईगो या सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट उससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. जो इम्प्रूवमेंट है आपके 1 से 2 टेस्ट सीरीज से ही होगा और एक टेस्ट सीरीज को बहुत डिलीजेंटली सॉल्व करने से होगा. पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दिन में आपने बेसिक्स नहीं पढ़े, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा और सिर्फ टेस्ट आप लिख रहे हो. तो हर चीज़ को बैलेंस आउट करना है, स्टैटिक, करंट एंड टेस्ट सीरीज. यस. तो सर अब जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी, तो टेस्ट मुझे कब लगाना चाहिए आइडियली? तो हिस्ट्री जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप जैसे टेस्ट सीरीज में भी थीम बेस्ड टेस्ट होते हैं, सारे तो फुल लेंथ टेस्ट नहीं होते.
तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने चाहिए जो हमारे वीक हैं। किसी का हिस्ट्री वीक हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का इकोनॉमिक। तो आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री के थीम टेस्ट निकाल लो। हिस्ट्री के आपको 7-8 टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। तो वो टेस्ट आप अपने प्रिपरेशन के साथ उसको सॉल्व करते जाओ, तो आपका कंटेंट भी स्ट्रांग होता जाएगा और टेस्ट सीरीज पे भी आपकी ग्रिप बनती जाएगी। करेक्ट करेक्ट ज्वाला, करेक्ट. अब one more thing that is मतलब I personally feel that is very important is that फिल्म्स का एक अपना माइंडसेट होता है और मेंस का एक अपना माइंडसेट अलग होता है. तो आप सेम चीज को पढ़ रहे हो. फॉर एग्जांपल इफ वी सी अलाउद्दीन्स रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी's रिफॉर्म, ये एक ऐसा टॉपिक जो प्री में भी आता है, यही टॉपिक ऐसा जो मेंस में भी आएगा. मेंस में आएगा डिस्क्राइब अलाउद्दीन रिफॉर्म, व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स. प्री में आ जाएगा कि अलाउद्दीन ने कौन कौन से रिफॉर्म किए, कौन कौन से नहीं किए हैं. तो जब पढ़ रहा है बच्चा एनसीईआरटी को, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए प्री के टाइम पे, क्या याद रखना है उसे, डेट्स याद रखनी है उसे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है. नहीं देखिए, मेंस हमेशा इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के लिए जो आप स्टोरी बिल्डिंग अपने माइंड में करते हो, एक ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो आप ड्रॉ करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछती है, तो वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछती है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो लोग मेंस की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए प्रीलिम्स निकालना भी आसान होता है। करेक्ट. तो आप बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड या रोट लर्निंग या क्रैमिंग पे मत जाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में स्टेट सर्विसेज एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बट यूपीएससी में वो ब्रॉडर थीम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो इफ यू आर गुड एट मेंस यू विल इजीली क्लियर prelims. So do not be short sighted only with respect to prelims. So guys, you have to focus on concepts, build concepts. How to build concepts? You have to read. You have to read every word in this NCERT. You have to go through those chapters and connect them with other chapters. For example, if you are reading Maurya and you are reading Gupta, then compare them. तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि डिफरेंस था क्या. कॉइन्स में डिफरेंस था, कल्चर में डिफरेंस था, खाने में डिफरेंस था, इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस था. दो बोथ आर मगधन एम्पायर्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस एट दैट टाइम. साउथ में कुछ था कि नहीं था. ये एक प्रेजेंस ऑफ पॉइंट लेके आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी का क्वेश्चन कर पाओगे. Now, coming back to prelims again, Jwala sir, one of the major issues that students face, because many are engineers or even humanities or lawyers, everyone face a single issue called economics. Very tough to crack, but I know from my personal experience that you are amazing at economics. आपको हमेशा economics से सारे सवाल prelims में ही बनते थे. आप कैसे समझते थे कैश फ्लो, मनी फ्लो, क्योंकि इतने हार्ड टर्म से समझ में ही नहीं आता है. या इंटरनेशनल मार्केट में डेट जा रही है, पब्लिक डेट जाता है, प्राइवेट डेट जाता है, तो कैसे आप इकोनॉमिक्स को मास्टर करते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? अब इकोनॉमिक्स जो है, अब आपको ये समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट बेस्ड प्रिपरेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स में हेल्प नहीं कर सकती है आपको। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, जीडीपी में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, परचेजिंग पावर जीडीपी, मार्केट प्राइस वाली जीडीपी, फैक्टर प्राइस वाली जीडीपी, बेसिक प्राइसेस वाली जीडीपी। तो हर जो टर्म है उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जब आप उस क्लैरिटी के साथ अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो, उसको रिवाइज करते हो, फिर उसको न्यूज़पेपर में भी एनालाइज करते हो और फिर टेस्ट सीरीज में भी उसको सॉल्व करते हो, तब जाके वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होती है। और आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी अब जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उसके अलावा एडिशनल टॉपिक्स भी पूछती है, जैसे कि कैपिटल मार्केट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से वो पूछ रहे हैं। तो सेबी के रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट में जो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे बीटा क्या होता है स्टॉक्स के लिए, तो ये चीज़ें आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हो उसके बियॉन्ड भी कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी पूछ रही हैं, तो वो चैप्टर्स भी आपको कवर करना चाहिए। कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, ये भी आपको कवर करना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग दैट देन इकोनॉमिक्स वुड बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। सो गाइस यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे? शांति से बनेंगे. बहुत शांति से बैठना है, एनसीईआरटी उठानी है, उसका एक एक पेज धीरे धीरे पलटना है. जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको गूगल करना है, यूट्यूब करना है, और कॉन्सेप्ट जब एक बार बन जाएगा आप कभी नहीं भूलोगे. एक बार आपको कैश फ्लो समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन आता है अगले साल कि नया जो वो आ रहा है, वेतन आयोग आ रहा है, 8th पे कमीशन आ रहा है, उससे अगर सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप सही आंसर ही करके आओगे. अगर आपने रट लिया तो आप गलत करके आ जाओगे. तो रटना नहीं है, समझना है इकोनॉमिक्स को, तभी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी. नाउ जोले सर, अगेन कमिंग बैक टू प्रीलिम्स, बहुत हार्ड होता है, इतना कट ऑफ मुश्किल से जाता है.
कट ऑफ गिरता है तो भी सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बच्चे जो बेचारे 3-3 4-4 साल से लगे हुए हैं, किसी का 2 नंबर से रुक रहा है, किसी का 1 नंबर से रुक रहा है। तो what for them, like they have to read again all the basics, what should they do? मतलब इतना पढ़ लिया, फाउंडेशन भी कर ली, टेस्ट सीरीज भी कर ली, नंबर फिर भी आ ही नहीं रहे, क्लियर हो ही नहीं रहे, क्या गलती कर रहे हैं वो लोग? व्हाट डू यू से, क्या करना चाहिए? तो प्रिपरेशन के साथ साथ ये तो हो गई आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन या टेस्ट की प्रिपरेशन, आपको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी करनी चाहिए अपनी। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब कि आपको अपना टेम्परामेंट भी चेक करना है Correct. कि जब आप टेस्ट लिखते हो तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है, कि आपको एनजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, तो आप उस चीज़ों को भी कैसे टैकल करते हो ऑन डेली बेसिस। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं टेस्ट तो आज 1.5 घंटे में सॉल्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और एग्ज़ाम के दिन मैं 2 घंटे में कर लूँगा। मैं टेस्ट अभी बस ऐसे कैजुअली दे देता हूँ और एग्ज़ाम में मैं बहुत सीरियसली दूंगा, तो वैसे नहीं होता। तो आपको टेस्ट को भी वैसे देना है कि रियल टेस्ट है, तो आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत प्रिपेयर्ड रहना है। यदि आपको एनजाइटी होती है तो आपको वो तरीके भी ढूंढने हैं कि आप एनजाइटी रिड्यूस कर पाओ। तो आप अपने तरीके ढूंढो। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन काम करता है, कुछ लोगों के लिए हॉबीज काम करता है, कुछ लोगों के लिए वॉकिंग काम करता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल के साथ उठना बैठना काम करता है। तो आप अपने माइंड का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको निकाल के लेके आना है प्रीलिम्स के लिए, और वो सिर्फ प्रीलिम्स के दिन नहीं निकलेगा, वो डेली बेसिस पे आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, हर कोई बेसिक्स पढ़ता है, करंट पढ़ता है, टेस्ट लिखता है, बट जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी करता है वो इस एग्ज़ाम को फाइनल डे एस करेगा। क्योंकि कभी कभी आप ये देखोगे कि उस 2 घंटे में या जो है जैसा आपका दिमाग चला वो बहुत डिटरमिन करता है। क्योंकि आपने सिली मिस्टेक्स कम करे, आप काम रहे, तो वो आपको बेटर करेगा। इस चीज़ को आप बस MS धोनी की बातें सुनो, तो व्हाट ही सेज, कॉन्फिडेंट पर्सन इज बेटर दैन एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो एग्जाम के पहले आप अपनी एंजाइटी इंक्रीज करते जाते हो कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, और सारा चीज़ रिवाइज करते, गाड़ी में भी पढ़ते जा रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं दिया। तो ये प्रिपरेशन भी आपको ऑन डेली बेसिस करनी चाहिए, तो ही आप एग्जाम डे पे परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। सो मैनेज योर एंजाइटी, योर साइकोलॉजिकल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप उसको मैनेज करते हो, हाउ यू गो थ्रू इट। और whoever हैज़ गिवन 3-4 अटेम्प्ट इसका नहीं क्लियर हो रहा है, वन मोर सजेशन फ्रॉम माई साइड, 4 साल का एक बार प्रीलिम्स का पेपर निकाल लो, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो। उस क्वेश्चन को वो पॉलिटी से आया है, इकोनॉमी से आया है, हिस्ट्री से आया है, कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये एनालिसिस कर लो। उसको NCERT से साथ में खोल के देख लो उसका सोर्स क्या था और आपसे वो क्यों नहीं बन पाया उस साल। क्या कॉन्सेप्ट आपका नहीं बना था, आपने डेफिनेटली पढ़ लिया होगा, हो सकता है आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो। जैसे आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा होगा पर आपको नहीं पता होगा कि वो राइट में लगता है, वो क्यों लगता है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक नहीं है तो हो सकता है वो आपसे नहीं बना हो सकता है आपने मिस ही कर दिया हो, वो ऐसी किताब से आया जो आपने मिस कर दिया हो, आपने सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ी हो या सिर्फ मॉडर्न इंडिया की दीक्षित पढ़ी हो और आपने NCERT नहीं, हो सकता है NCERT से आया हो। या फिर हो सकता है आपने वहाँ पे जाके गलत कर दिया हो, आपने उसको रिविजन नहीं किया। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ इट्स ओन फेलियर रीजंस। हर इंसान यूनिक है, कोई सेम तो होता नहीं है, आपका अपना रीज़न है, आपको वो आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता, ज्वाला सर नहीं कर सकते, कोई टेस्ट सीरीज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आप 1 हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, आप 4 साल तैयारी करें, आपको टेस्ट सीरीज लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पढ़ने के तरीके में गलती क्या है, और वो समझने का एक ही तरीका है कि आप अपने आपके साथ बैठें रोज 5-6 घंटे आप बैठिए, पेपर लीजिए, एनालिसिस करिए, पेपर लीजिए, एनालिसिस करिए कि कहाँ गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट में गलती है, रिविजन में गलती है, टेक्निक में गलती है। वंस यू आर थरो विद योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ better than anyone else in this world, and once you know what's your mistake you will rectify it and you will clear your prelims very easily. I have seen students जिनके 60 नंबर भी नहीं आते थे, 50 भी नहीं आते थे, एक बार उन्होंने अपनी गलतियाँ सुधारी एंड दे आर स्कोरिंग 120, 115, 120 प्लस। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, भले ही आपके 3 से 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं। एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सो एनीवन हु इज गिविंग प्रीलिम्स फॉर 2-3 years कॉन्स्टेंटली स्टक वाली जो फीलिंग होती है ना, स्टक कर गए वहाँ पर, निकल ही नहीं पा रहे वहाँ से, हम आपको निकालेंगे वहाँ से। वी विल गिव यू मेंटरशिप फॉर 2 to 3 months, जो भी टाइम अभी बचा हुआ है। वी विल हैव ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, वी विल मीट एवरी 7 days फॉर 3 to 4 hours, विल डिवाइड स्ट्रेटजी फॉर द वीक। पूरे वीक के दौरान में हम समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बनाना कैसे है, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से बनाना है, इकोनॉमिक्स का कहाँ से बनाना है, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट बनाने कैसे हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करके आना है, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, ये सब हम आपको सिखाएंगे इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर।
So me, Jwala sir, we have a very good team. We are starting a mentorship program. You can join it. और वी विल ट्राई कि आप पार कर जाएं वो प्री का एक बार जो बैरियर बना हुआ है, आप 3 साल से 2 साल से दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है. एंड बिलीव मी, इट इज़ द बिगेस्ट बैरियर बिकॉज आई थिंक मेंस इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू प्री. प्री में इतनी अनसर्टेनिटी होती है, क्या आता है क्या नहीं आना होता है. कंपैरेटिवली मेंस में बहुत आसानी है, पता है ये सवाल आएगा, उसका ही आंसर लिख के आना है. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. We will provide you contact details for our mentorship program, and I hope you will join us.